Good evening, students. Let's start with the next topic of chapter democratic rights. Last video में we have read about what are rights and what is the importance of rights in a democracy. डेमोक्रेसी के खुद के सर्वाइवल के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमें कोई एक्सप्लॉइट ना करे, वी ऑल नीड सर्टेन राइट्स and those rights are claims which we want from our society, government or from our fellow beings. Now we will read about the basic rights which have been guaranteed to us as Indian citizens by our Indian constitution. Those rights are mentioned in the constitution and hence they are called as fundamental rights. So we will be going through all the fundamental rights one by one. Rights in the Indian democracy. In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. They are called fundamental rights. India, like all other rest of the democracies in the world, कुछ रूल्स या कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ठीक है, ऐसे राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है एंड हेंस दीज राइट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स. तो एज वी ऑल नो दैट देयर आर 6 fundamental rights which are guaranteed to us by the Indian Constitution. So number 1 is right to equality, number 2 is right to freedom, then we have right against exploitation, then we have right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. These are 6 basic fundamental rights which are given to us by the Indian Constitution. So we'll start with the first fundamental right, which is right to equality. Right to equality. The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws. It means that the laws apply in the same manner to all, regardless of a person's status. अगर एक नटशल में देखें तो right to equality means that every person will be considered as equal irrespective of the caste, status, creed or religion. किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी स्टेटस का हो, रिच हो, पुअर हो, एडुकेटेड हो, अनएडुकेटेड हो, लॉ के सामने सारे लोग क्या है, एकदम इक्वली ही मतलब ट्रीट किए जाएंगे. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं कर सकते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज डैट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी बेसिस पे किसी भी इंसान को लॉ के सामने डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है. वेदर इट्स अ प्राइम मिनिस्टर, वेदर इट्स अ स्मॉल फार्मर, both will be equal before the law irrespective of the status the prime minister is enjoying in his life or irrespective of the status the farmer is having in his life. That is not the case. Both the person will be equal before the law. This is called the rule of law. Rule of law is the foundation of any democracy. It means that no person is above the law. Law के ऊपर कोई भी नहीं है. The supreme authority is law. There cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen. चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे वो एक नॉर्मल एक सिटीजन हो, किसी के भी बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. इट इज़ स्पेशली एम्फेसिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Every citizen from the prime minister to a small farmer in a remote village is subjected to the same laws. चाहे फार्मर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबके ऊपर जो लॉज अप्लाई होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे. No person can legally claim any special treatment or privilege just because he or she happens to be an important person. ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है तो वो कुछ क्लेम कर सकता है कि उसको स्पेशल राइट मिलने चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छे स्टेटस पर है, और क्योंकि फार्मर के पास कोई स्टेटस नहीं है तो उसको राइट नहीं क्लेम होना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आप छोटे से फार्मर हो, दोनों का जो स्टेटस होगा वो बिल्कुल अलग होते हुए भी जो राइट्स अप्लाई होंगे वो दोनों पे बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे. For example, a few years ago, a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating. The court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and the papers, just like any other citizen. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत साल पहले प्राइम मिनिस्टर था, उन पे चार्जेस लगे थे that he has cheated. He was caught in some cheating एंड दैट इज़ वाई उनके अगेंस्ट केस हुआ था. लेकिन बाद में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके हिसाब से वो गिल्टी नहीं थे. लेकिन उसके बावजूद बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज आल्सो सपोज टू गो टू कोर्ट एंड ही आल्सो हैड टू गिव हिज एविडेंस. उसको भी एकदम नॉर्मल सिटीजन की तरह सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ रहे थे. तो ये चीज़ दिखाता है कि लॉ के सामने आप किसी भी स्टेटस के हो, आप एकदम क्या हो, बराबर हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आप नॉर्मल सिटीजन हो.
The government shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. आपका सेक्स कोई भी हो, आप किसी भी कास्ट के हो, SC, ST, शेड्यूल्ड जो भी है, आप सब क्या होंगे, एकदम सेम ट्रीट होंगे. Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels, and cinema halls. Similarly, there shall be no discrimination restriction with regard to the use of wells, tanks, bathing guards, roads, playgrounds, and places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public. बहुत पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी एक प्रथा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी. उसमें था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी यूज़ की हुई चीज़ें शेड्यूल कास्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट टू इक्वालिटी का राइट दिया है, तब से आप किसी भी स्टेटस के हो, किसी भी कास्ट के हो, ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो एक टैबू था, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया. अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पब्लिक प्लेस है तो उसको यूज़ करने का राइट सबको है. चाहे वो छोटा रिक्शा वाला हो, चाहे वो बड़ा इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो. इफ़ अ प्लेस इज़ मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, देन एवरी वन हैज़ द राइट टू गेट एक्सेस टू दैट पब्लिक फैसिलिटी. पब्लिक सिनेमा हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, इनमें भी सब कोई उसमें जाके उसको यूज़ कर सकता है. This might appear very obvious, but it was necessary to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from same communities to access all public places. अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है कि सारे सिटीजन्स क्या होंगे, लॉ के सामने इक्वल होंगे, गवर्नमेंट उनको किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. क्योंकि पुराने टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में ऑर्थोडॉक्स बहुत थे लोग और उस समय पे अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनटचेबिलिटी को फिर बैन किया गया और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स दे दिए गए कि आगे कोई ऐसी सिचुएशन ना हो. इसलिए सबको क्या दिया जाएगा, सेम स्टेटस दिया जाएगा, सबको सेम राइट्स दिए जाएंगे. उन राइट के बेस पे जो भी है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको सब इक्वली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. कोई भी उससे डिप्राइव नहीं हो सकता है. The same principle applies to public jobs. All citizens have equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position in the government. Is the case with the jobs also. गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे सर्कुलर्स निकालती है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है. उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए नो वन इज़ restricted. No matter which caste you are in, which status you are in, अगर आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो जॉब्स हैं तो आप उसमें अप्लाई करके उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो. यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. उसमें कोई भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है. नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अबव. जो चीज़ें हमने पढ़ी है, कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बेस पे आपको कोई पब्लिक जॉब्स में भी बैठने से नहीं रोक सकता है. If you are an Indian citizen and if you want to apply for a particular job that has been issued by the Indian government, you have every right to be a part of that exam and sit in that exam and qualified for that exam. No one can stop you from doing so. The government of India has provided reservations for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. ये सब होने के बाद भी कुछ जॉब्स हैं, कुछ सीट्स हैं कॉलेजेस में, जॉब्स में, जो कि रिज़र्व की गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बाकी बैकवर्ड क्लासेस के लिए. वेरियस गवर्नमेंट्स हैव बीन डिफरेंट स्कीम्स फॉर गिविंग प्रेफरेंसेस टू वुमेन, पुअर और फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सम काइंड ऑफ जॉब्स. उसके अलावा कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें फिजिकली डिसेबल्ड या बहुत गरीब लेडीज़ हैं, उनके लिए भी क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ रिजर्वेशंस दिए हुए हैं. सम सीट्स आर reserved for those people. Are these reservations against the right to equality? They are not. क्या अब हम इसको अगर कंपेयर करें, इक्वालिटी मीन्स जनरल, SC, ST सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. वहीं पर अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है? नहीं. क्यों नहीं है? इसके रीजंस हैं. इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई द रिजर्वेशंस आर नॉट अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी. एक तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोल रही है कि राइट टू इक्वालिटी है, सारे लोग एक साथ क्या है, एक साथ ही ट्रीट किए जाएंगे, एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे. वहीं पे रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को ही दिए जा रहे हैं. तो इज़ इट अगेंस्ट इक्वालिटी? तो इसका आंसर है नो. अब रीजंस क्या है ये हम लोग देखेंगे. For equality does not mean giving everyone the same treatment.
no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. इक्वालिटी का मतलब यही नहीं है कि आप सबको एक जैसे बराबर से दोगे. हमारे कंट्री में क्या है, जो गरीब है वो एकदम गरीब हैं, जो अमीर है वो एकदम अमीर है. जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इक्वालिटी के बेसिस पे द रिच पीपल आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, द पुअर इज़ गेटिंग पुअरर एंड पुअर. तो पुअर को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिजर्वेशंस दिए हुए हैं. रिजर्वेशंस दिए हुए हैं ताकि वो भी अपने एक एग्जिस्टेंस या अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके. अगर ऐसे रिजर्वेशंस नहीं होंगे तो दे वोंट बी एवर बी एबल टू रिप्रेजेंट देम ऑन द फोर फ्रंट. वो कभी भी उनको मौका नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दोज रिसोर्सेज. तो उन रिसोर्सेज को इनडायरेक्टली उनको प्रोवाइड करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व फ्यू सीट्स फॉर देम इन सम ऑफ द अदर गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ऑल. Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सबको बराबर से मौका मिल सके. जो लोग नॉर्मल हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकते हैं, और कुछ उन्हीं के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग. और अगर वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो कभी अपने रिप्रेजेंटेशन को फोर फ्रंट पे नहीं ला पाएंगे. तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है. एंड दिस स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द रिजर्वेशंस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. This is what job reservations do. Just to clarify this, the Constitution says that reservations of this kind are not a violation of the right to equality. Even the Constitution says that कि जो reservations हमने दिए हुए हैं ये किसी भी तरीके से right to equality का violation नहीं करते हैं. Right to equality is the basis of that fact that every person will be equal before law. वो अपनी तरह applicable है, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं ताकि उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि वो भी अपने आप को एक जनरल फोरम में आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके. द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू सोशल लाइफ एज वेल है. सोसाइटी में भी बहुत सारा एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन का ट्रेंड चल रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट. पहले के टाइम में, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, जो अनटचेबिलिटी था वो बहुत ही प्रेवलेंट था. तो गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट भी डायरेक्शन दिया है कि ये सब क्या हो जाना चाहिए, एकदम बंद हो जाना चाहिए, ताकि जो राइट टू इक्वालिटी का एक कंसेप्ट है वो कहीं से भी वॉयलेट ना हो सके. The practice of untouchability has been forbidden in any form. Untouchability here does not only mean refusal to touch people belonging to certain caste. Untouchability का मतलब ये नहीं कि आप उनको छू नहीं सकते हो, सिर्फ उससे मतलब नहीं था. Untouchability से मतलब ये था कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि वो जनरल कैंडिडेट है तो ओनली दोज पीपल कैन गो एंड यूज़ दोज प्लेसेस. नहीं, ऐसा नहीं है. SC ST या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी आके उनको उतने ही राइट के साथ यूज़ कर सकते हैं जितना कि जनरल कैंडिडेट उसको यूज़ करेगा. तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ रिमूविंग अनटचेबिलिटी, डैट एक जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्या हो सके, एग्जिस्ट कर सके, अप्लाई कर सके. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. Such practice denies them interaction with others or access to public places as equal citizens. So the Constitution made untouchability a punishable offence. पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था, लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन आज के टाइम में इसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है. अगर कोई भी अनटचेबिलिटी फॉलो करते हुए मतलब पकड़ा जाता है या उसके अगेंस्ट में अगर कोई केस करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा. इसलिए क्योंकि अनटचेबिलिटी के बेस पे आपने उनको सोसाइटी से क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था. दे वर नॉट गिवन द राइट्स टू इंटरेक्ट विद अदर्स द वे अदर्स आर गिवन द राइट टू इंटरेक्ट विद सोसाइटी एज अ होल. तो ये सब चीज़ें हटाने के लिए, उनको पूरी तरह से फ्रीडम देने के लिए कि वो लोग भी सोसाइटी में फ्रीली रह सकें, अच्छे से रह सकें, चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ कर सकें, अपने आप को एक BPL लेवल पे थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं. और उसी में एक उनका ये भी था कि अनटचेबिलिटी को वो लोग रिमूव कर देंगे, सो दैट दोज पीपल कैन ऑल्सो कम टू द फोर फ्रंट एंड बी अ स्ट्रॉन्गर पिलर ऑफ द कंट्री. सो ये हमारा पहला राइट था, राइट टू इक्वालिटी. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बहुत सारे और 5 राइट्स हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे.